students of class 7, this is your science worksheet number 20 and it is dated for today, that means 23rd of September. We were already into this nutrition of plants in the previous worksheets. So today we are going to revise whatever we have studied. I hope you have studied at home also from your textbook this particular lesson. There may be some things which were not covered in the worksheets, but I will be explaining them to you. So what we have learned: all organisms need food and utilize it to get energy for growth and maintenance of their body. सभी एनिमल्स और प्लांट्स को फूड चाहिए. प्लांट्स ऑटोट्रॉफ होते हैं, वो दे सिंथेसाइज देयर ओन फूड, लेकिन जो दूसरे एनिमल्स होते हैं just like men, dog, cat, fish, every type of bird, there are so many animals, they also want energy for growth and development of their body, so they get it from plants only. How? Plants are eaten by deers, plant seeds are eaten by rats, plants leaves are eaten by grasshoppers. And what next? Grasshopper is eaten by a toad or a frog. Frog is again, or toad is again eaten by the snake, and snake is eaten by the eagle. Ultimately you will see there is a chain, means who eats who, but everybody needs food for getting energy for their growth, है ना? Rat is eaten by cat, rat is eaten by snake, cat is eaten by dog, cat is eaten by you can say jackal or the fox. Fox is, or jackal is eaten by the leopard. Leopard can be eaten by the lion. You see? ठीक है? So there is always a chain, but ultimately you will find plants are the basic form for getting energy for growth and maintenance of their body. That is why we divide them into herbivores, carnivores and omnivores. Second point is, green plants synthesize food for themselves by the process of photosynthesis. They are called autotrophs. Process of photosynthesis, that is why they are named as autotrophs. तो प्रीवियस वर्कशीट्स में मैंने देखा, आप पता नहीं ऑटोट्रॉफिक क्यों लिखते हो. अगर आपको बताना है कि वो फूड खुद सिंथेसाइज कर रहे हैं तो आप वर्ड यूज़ करोगे ऑटोट्रॉफ्स, या आप यूज़ करोगे ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. तो बेटा इससे पहले एक शब्द आएगा मोड ऑफ ऑटोट्रॉफिक. मोड इज़ ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. प्लांट्स का मोड क्या है? ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. या आप बोलोगे प्लांट्स आर ऑटोट्रॉफ्स. ठीक है? कौन से प्लांट्स? रिमेंबर, यू मस्ट राइट ग्रीन प्लांट्स. ठीक है बेटा? सो थर्ड पॉइंट इज, प्लांट्स यूज सिंपल केमिकल सब्सटेंसेज लाइक कार्बन डाइऑक्साइड गैस, वाटर एंड मिनरल्स for the synthesis of food, but not without chlorophyll, water and carbon dioxide, sunlight. Chlorophyll और sunlight अगर नहीं है and you have only these things, then plant will not be able to synthesize food. क्योंकि क्लोरोफिल की प्रेजेंस में ही ये एक केमिकल रिएक्शन होता है जो कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को कंबाइन करता है सनलाइट की प्रेजेंस में, और ऑक्सीजन गैस इज रिलीज्ड. ठीक है बेटा? तो यू मस्ट रिमेंबर ऑल दीज थिंग्स. Now the next point is, plants like cuscuta and parasites. Plants like cuscuta are parasites. They take food from the host plant. तो बेटा प्लांट्स जो होते हैं उसमें कस्कुटा जो होता है, येलो कलर की डंडी डंडी जैसी एक स्ट्रक्चर होता है इनका. सेक्टर 24 में DPS के स्कूल के सामने पार्क में हर पेड़ के ऊपर आपको कस्कुटा नज़र आएगी. आप डी इंडियन पब्लिक स्कूल है, उसके साथ पूरी लाइन से पेड़ हैं, वहाँ पे हर पेड़ के ऊपर ये कस्कुटा है. तो आप पापा से बोले कि दे विल टेक यू देयर टू, यू विल सी देम. हो सकता है यू हैव सीन देम बिफोर बट यू डोंट नो दैट दे आर कस्कुटा. दे आर पैरासाइट्स क्योंकि दे डोंट सिंथेसाइज देयर ओन फूड. दे आर प्लांट लाइक
but they are not plants. They take food by sucking from the tree on which they are lying. तो जो ट्री है जो उनको फूड प्रोवाइड कर रहा है वो होस्ट है. ठीक है. नाउ लेट अस गो फॉर द नेक्स्ट पॉइंट. कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस. कौन से सब्सटेंस? केमिकल सब्सटेंस सच एज कार्बोहाइड्रेट्स आर द प्रोडक्ट्स ऑफ द फोटोसिंथेसिस. तो कार्बोहाइड्रेट जो है वो प्रोडक्ट होता है फोटोसिंथेसिस का. कार्बोहाइड्रेट इस वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड से बना होता है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट के अंदर C फॉर कार्बन, क्योंकि बेटा साइंस में हम कार्बन को C सिंबल से लिखते हैं. हाइड्रोजन जिसका सिंबल H होता है साइंस में, और ऑक्सीजन जिसका सिंबल O होता है साइंस में. तो कार्बोहाइड्रेट इज़ मेड अप ऑफ CHO. तो इनको हम एटम्स बोलते हैं. इनसे बना होता है एंड इट इज़ अ वेरी बिग मॉलिक्यूल. तो आप सीनियर क्लास में जाएंगे तब आप पढ़ेंगे मॉलिक्यूल और एटम के बारे में. तो कार्बोहाइड्रेट जिस फॉर्म में बनता है दैट इज़ कॉल्ड ग्लूकोज. ठीक है. तो ये बनाता है ग्लूकोज जिसका फार्मूला होता है C6H12O6. ये आपके सिर्फ लर्निंग के लिए है. ठीक है. C6H12O6 मैं थोड़ा सा आपको क्लियरली लिखती हूँ. रुको. फार्मूला होता है C6H12O6. ये ग्लूकोज का फार्मूला होता है. ये ग्लूकोज वही होता है जब आपको वीकनेस होती है तो आप ग्लूकोज पीते हो ना, ग्लूकॉन डी के रूप में. ये वही फार्मूला होता है. ठीक है बेटा, ग्लूकोज का फार्मूला. ठीक है. ये प्लांट्स बनाते हैं. फिर आपको लगेगा कि ये प्लांट्स तो कड़वे होते हैं, हर लीफ ग्लूकोज बना रही है, तो हर लीफ स्वीट क्यों नहीं है? क्योंकि ग्लूकोज के साथ दूसरे और सब्सटेंस फॉर्म होते हैं. सीनियर क्लास में पढ़ोगे आप. ठीक है बेटा. तो खाली ग्लूकोज और वाटर ऑक्सीजन नहीं बनता, ऑक्सीजन भी रिलीज़ करता है. ऑक्सीजन इज़ O2 गैस. इसको खाली ऑक्सीजन नहीं बोलते, ऑक्सीजन गैस बोलते. दिस इज़ ऑल्सो रिलीज्ड. लेकिन इसके साथ साथ और केमिकल सब्सटेंस बाई प्रोडक्ट के रूप में बनते हैं जो सीनियर क्लास में पढ़ेंगे हम. ठीक है. नाउ नेक्स्ट इज सोलर एनर्जी इज अब्जॉर्ब बाय द क्लोरोफिल प्रेजेंट इन द लीव्स और द प्लांट. अब इसने लीव्स ओब्लिक प्लांट क्यों लिखा है? क्योंकि प्लांट के अंदर जहाँ जहाँ क्लोरोफिल है वो सोलर एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा और क्लोरोफिल गिव्स ग्रीन कलर. तो ओनली लीव्स आर नॉट ग्रीन. जो न्यू बर्ड है वो भी ग्रीन है, जो सैपल्स हैं फ्लावर के वो भी ग्रीन हैं, स्टेम भी ग्रीन होता है. ठीक है. तो एनी पार्ट ऑफ द प्लांट विच इज़ ग्रीन इन कलर मीन्स इट कंटेन्स क्लोरोफिल एंड इट विल बी एब्जॉर्बिंग सनलाइट. ठीक है. नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज ऑक्सीजन इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस इज यूटिलाइज्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स फॉर देयर सर्वाइवल. बेटा एक तो गलती क्या है, ऑक्सीजन गैस होना चाहिए. इट इज़ ऑल्सो प्रोड्यूस्ड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, जो कि प्लांट के लिए यूजलेस है. प्लांट डोंट नीड ऑक्सीजन गैस. तो इट गिव्स आउट थ्रू स्टोमेटा. स्टोमेटा स्मॉल होल्स होते हैं ऑन द अंडर साइड ऑफ द लीफ. बुक में ज़रूर पढ़िए आप, इसकी फिगर्स बनी हुई हैं. ठीक है. तो उसमें से वो रिलीज़ कर देता है अलॉन्ग विद एयर. कभी मत कहना कि हम कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं और ऑक्सीजन यूज़ करते हैं और प्लांट जो है कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ करते हैं ऑक्सीजन निकालते हैं. नेवर नेवर. दे ऑलवेज, चाहे एनिमल से चाहे प्लांट है, दे ऑलवेज इनटेक एयर, दे ऑलवेज गिव आउट एयर. लेकिन उस एयर में से क्या एब्जॉर्ब करते हैं? प्लांट एब्जॉर्ब करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और हम एनिमल्स एब्जॉर्ब करते हैं ऑक्सीजन. जो कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करेगा वो ऑक्सीजन छोड़ेगा, जो ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करेगा वो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेगा. नाउ नेक्स्ट इज मैनी फंजाई derive nutrition from dead and decaying matter like mushrooms. They are called saprotrophs. मैंने आपकी प्रीवियस वर्कशीट्स में देखा है आप स्पेलिंग लिखने में गड़बड़ करते हो. दिस इज़ रॉन्ग. यू मस्ट गो थ्रू द वर्कशीट देन ओनली यू राइट द आंसर प्रॉपरली विद प्रॉपर स्पेलिंग्स. क्योंकि फंजाई जो होती हैं ये फंगस आपने देखा होगा ड्यूरिंग रेनी सीज़न आपके कपड़ों में वाइट वाइट पैचेस आ जाते हैं. जो ब्रेड रखी हुई है ब्रेड के ऊपर पहले वाइट पैच आएगा, फिर वो येलो होगा, ग्रीन होगा, फिर ब्लैक होगा. दैट इज़ फंगस. ठीक है. तो एक फंजाई है जिसका नाम मशरूम है, जिसको हम सब्ज़ी बना के खाते हैं. मटर मशरूम की सब्ज़ी बना के खाते हैं, पिज़्ज़ा में डालते हैं. सब्ज़ी वाले 10-10 रुपए के पैकेट बना के बेचते हैं. आप सब ने देखा होगा, लेकिन आप उसे खुम्बी कहते होंगे या मशरूम कहते होंगे, मुझे नहीं पता. यू नो बेटर. तो साइंस में हम इसको
सेप्रोट्रॉफ्स बोलेंगे, ठीक है। नाउ लेट अस गो थ्रू द क्वेश्चन आंसर। कस्कुटा इज एन एग्जाम्पल ऑफ पैरासाइट। राइट एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस, यू कैन राइट क्लोरोफिल, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, सनलाइट एंड मिनरल्स, ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 इज डैश इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, ऑलवेज राइट ऑक्सीजन गैस, ठीक है। यहाँ लिखेंगे ऑक्सीजन गैस, पूरा इंग्लिश में नाम लिखेंगे और साइंस में उसका सिंबल होता है O2, ठीक है बेटा। एंड कीप योर सेल्फ सेफ फ्रॉम COVID-19 डिजीज़ बाय वियरिंग मास्क, मेंटेनिंग ए सोशल डिस्टेंस ऑफ 2 yards एंड वॉशिंग योर हैंड्स प्रॉपरली व्हेनेवर यू कम बैक होम, ठीक है बेटा।